Good morning, class. Welcome to the first lecture of marketing research. Okay. So basically, this is subject of marketing research. So, मेरा नाम अमाद है. So I'm teaching you marketing research and strategic marketing as well. ठीक है. So we'll start this subject with an introduction to research. ठीक है. And I'll just share quickly with you the course outline as well over here. राइट सो दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स की कोर्स आउटलाइन है. जस्ट गो टू मार्केटिंग रिसर्च और okay, so this is the course outline of marketing research. Okay. So you can see basically it's marketing research introduction है. We first topic is marketing research and its importance, situation analysis and marketing strategy. ठीक है. फिर characteristics of good market research है. फिर MR process, initiative, design, execution, reporting, management problem versus MR problem. Secondary data in MR, internal sources of secondary data, external sources of secondary data. Okay, so these are basically ठीक है. The book मैंने भी डिसाइड नहीं की. Probably it's going to be market research by नरेश के मल्होत्रा. ठीक है. In the start हम उमर सेक्टर में से कुछ पढ़ेंगे. ठीक है. Research methods for business by उमर सेक्टर. ठीक है. Which is basically just some topics from there. ठीक है. We'll start with an introduction to research. ठीक है. फिर हम market research की बात करेंगे उसके बाद. Okay, so this was a little about the course outline. ठीक है. पॉसिबली हम एक से ज़्यादा बुक से पढ़ेंगे तो बट यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट दैट. ठीक है. आप एक बुक पढ़ सकते हैं. आपको एक बुक में मैक्सिमम कंटेंट मिल जाएगा. ठीक है. राइट. So we basically started with an introduction to research. कि research क्या होती है. Just open the slides here. Okay, so we'll just start with an introduction to research. ठीक है. आप already ये चीज़ें पढ़ चुके हैं. I'll just quickly go through this. ठीक है. This is from the book of Omar Sector. ठीक है. Hopefully आपने पहले भी पढ़ी होगी. ठीक है. So in this lecture we'll just briefly talk about कि research चीज़ क्या होती है. What is research? ठीक है. Research is the process of finding solutions to a problem
आफ्टर अ थरो स्टडी एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन फैक्टर्स। ठीक है, तो रिसर्च क्या चीज़ है बेसिकली, इट्स व्हेनेवर वी हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, हम अगर प्रैक्टिकल हवाले से बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल सेल्स कम हो रही है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड नहीं है, ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है तो वी ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। ठीक है, और उस सोल्यूशन को ढूंढने के लिए वी हैव टू डू रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, so managers in organizations constantly engage themselves in studying and analyzing issues and hence are involved in some form of research activity as they make decisions at the workplace। ठीक है, यानी कि managers are always involved in some kind of research at the workplace। तो मैनेजर्स है दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और मैनेजर्स का ये एक काम होता है, ठीक है, टू मेक डिसीजंस। ठीक है, दे कैन मेक गुड डिसीजन और दे कैन मेक बैड डिसीजंस। ठीक है, सो इफ़ यू वांट मैनेजर्स टू मेक गुड डिसीजंस देन योर जो है ना आपकी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, विच मीन्स यू हैव टू डू रिसर्च फॉर दैट। ठीक है, सो गुड डिसीजन मेकिंग जो है बेसिकली फेचेस यस आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छे फैसले करने के लिए मैनेजर्स नीड टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है रिसर्च में बहुत इस्तेमाल होते हैं बेसिकली। ठीक है, सो नंबर 1 इज टू मैनेजर्स आइडेंटिफाई वेयर एग्जैक्टली द प्रॉब्लम लाइज। नंबर 2 इज डू दे करेक्टली रिकग्नाइज द रेलेवेंट फैक्टर्स इन द सिचुएशन नीडिंग इन्वेस्टिगेशन। डू दे नो व्हाट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर टू बी गैदर्ड। Do they know how to make use of the information so collected and draw appropriate conclusions to make the right decisions? So do they know how to implement results of this process to solve the problem? So this is the essence of research, and to be a successful manager, it is important for you to know how to go about the right decision. ठीक है, आज के ज़माने में रिसर्च जो है वो ज़्यादा एडवांस्ड होगी और एक तरह से आसान भी होगी बिकॉज टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई है। ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए हैं, वी ऑल्सो हैव सॉफ्टवेयर्स जिसको यूज़ करके हम रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर की वजह से नाउ इट इज़ एवरीथिंग नॉलेज इज़ विद इन ईजी रीच। ठीक है, हम सारी दुनिया की नॉलेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू द कंप्यूटर इंटरनेट। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्या चीज़ है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, यू ऑलरेडी नो कि मैनेजर्स जब डिसाइड करते हैं या डिसीजन मेकिंग करते हैं किस तरह करते हैं, दे लिस्ट डाउन देयर अल्टरनेटिव्स और उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं। ठीक है, दे आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, लिस्ट डाउन द अल्टरनेटिव्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम और उसमें से वो बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं। दैट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो अगेन डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है एंड बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग ही रिसर्च है। ठीक है, सो रिसर्च की बेसिक डेफिनेशन जो है, यू वांट टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, बिजनेस रिसर्च की अगर हम बात करें तो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू इन्वेस्टिगेट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन द वर्क सेटिंग। ठीक है, तो बिजनेस रिसर्च जो है एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक एफर्ट होती है, यानी कि एक रैंडम हैफेजर्ड किस्म की एफर्ट नहीं है, सिस्टमैटिक है, एक ख़ास तरीके से चलती है और ऑर्गेनाइज रहती है। मकसद उसका वही होता है टू इन्वेस्टिगेट और सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन बिजनेस रिसर्च ज़्यादा अप्लाइड होती है। वी आर इन बिजनेस रिसर्च वी वांट टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो बिजनेस रिसर्च इट बेसिकली इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स designed and executed with the goal of finding answers to the issues that are of concern to the manager and the work environment. Steps of business research। ठीक है, so जब भी आप रिसर्च करें बिजनेस की हो या मार्केटिंग रिसर्च हो, ठीक है, you have to know where the problem areas exist in the organization. Then you have to identify as clearly and specifically as possible the problems that need to be studied and resolved. Gather information, analyze the data, determine factors that associate। ठीक है, तो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को एनालाइज करना है कि प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, प्रॉब्लम किस तरह की है, प्रॉब्लम का नेचर क्या है, वो कहाँ एग्जिस्ट करती है। सेकेंडली यू हैव टू क्लियरली आइडेंटिफाई द पॉसिबल वेज यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, और वो किस तरह पॉसिबल है, उसके लिए यू हैव टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। फिर वो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको एनालाइज करना पड़ता है एंड देन यू डिटर्मिन कि व्हाट आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम। ठीक है, सो मैनेजर्स एनकाउंटर बिग और स्मॉल प्रॉब्लम्स एवरी डे इन ऑर्गेनाइजेशंस। So business research जो है it can be related to areas in accounting, finance, management और marketing। हम marketing वाले ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, so these are some problems in accounting।
ठीक है, सम प्रॉब्लम्स इन फाइनेंस, प्रॉब्लम्स इन मैनेजमेंट, ठीक है, एम्प्लॉय एटीट्यूड्स का प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने आपको बताया था, हो सकता है एम्प्लॉयज़ जो हैं आपकी कंपनी में मोटिवेटेड नॉट टू डू देयर वर्क। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज का काम प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज़ नॉट मेकिंग इनफ एफर्ट टू रिक्रूट द राइट कैंडिडेट्स, ठीक, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज अगर राइट कैंडिडेट आप रिक्रूट नहीं करेंगे तो दैट मीन्स आपकी कंपनी में लोग सही तरह से काम नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस कंपनी की इफेक्ट होगी। फिर प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, प्रॉब्लम्स इन मार्केटिंग किस तरह की, प्रोडक्ट इमेज का मसला हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसका जो इमेज है इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स वो ख़राब हो गया, उसको ठीक करना है। एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है अक्सर कंपनीज फॉल्स एडवर्टाइजिंग कर देती हैं, ठीक है, या अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में एग्जैजरेशंस करती हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के पेश करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल टीवी पे एड्स देखा होगा, वो कहते हैं कि वो इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज़ सबसे बेहतर, ठीक है, तो ये सबसे बेहतर चीज़ होती है ना, दिस कैन समटाइम्स बी एग्जैजरेशन, ठीक है, तो इफ़ यू आर एक्चुअली नॉट टेलिंग द ट्रुथ अबाउट योर प्रोडक्ट तो इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी, ठीक है। फिर सेल्स प्रमोशन है, ठीक है, सेल्स प्रमोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सेल्स प्रमोशन का मकसद होता है यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्स, ठीक है, अगर आपकी सेल्स प्रमोशन की वजह से सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है आप जो चैनल यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दैट इज़ नॉट द राइट चैनल फॉर योर कस्टमर्स, ठीक है, मे बी आप अगर आप लेट्स से सिर्फ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन रिटेलिंग को यूज़ करें, दैट इज़ द ओनली चैनल यू आर यूजिंग, तो मे हो सकता है आपके कस्टमर्स कंफर्टेबल ना हो ऑनलाइन परचेजेस के साथ, ठीक है, ख़ास उम्र के लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद कंप्यूटर्स, ठीक है, तो ऑनलाइन चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो अगर आपकी टारगेट मार्केट जो है वो लेट्स से इज़ ओल्डर पीपल ओल्डर देन 60 years of age, तो if you're using the wrong distribution channel तो then you'll have to do something about that। प्रोडक्ट पैकेजिंग इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है बहुत फ्रेजाइल हो, ठीक है, नीचे गिरे तो टूट जाए, ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यू हैव टू एड्रेस। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं आपने प्रोडक्ट को प्राइस इस तरह किया होगा इट्स टू एक्सपेंसिव, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू डू, ठीक है। सो प्रोडक्ट टू प्राइस अ प्रोडक्ट राइट यू हैव टू डू मार्केट रिसर्च, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग करने से पहले यू हैव टू डू मार्केट रिसर्च, ठीक है। फिर आफ्टर सेल सर्विस के मसले हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है आपकी इंडस्ट्री में आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हो, ठीक है, जो कंपनी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस ऑफर करती हैं उनकी सेल्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो अगर आपकी आफ्टर सेल सर्विस आप नहीं ऑफर कर रहे तो इट इज़ लाइकली कि आपकी सेल्स सफ़र करेंगे, ठीक है। सो अगेन दिस कैन ओनली बी रियलाइज थ्रू मार्केट रिसर्च, ठीक है, तो मार्केट रिसर्च के लिए पता लगाएंगे भी आफ्टर सेल सर्विस का सेल्स से क्या ताल्लुक है, ठीक है। इफ़ यू थिंक आफ्टर सेल सर्विस इज़ इम्पॉर्टेंट and if your company is not offering a good after sales service so then you'll have to do something about that। फिर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के प्रॉब्लम हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, हो सकता है आप अगर परफ्यूम बेचते हैं तो आपका जो कंज्यूमर है ही माइट नॉट बी कंफर्टेबल विद द स्मेल ऑफ द परफ्यूम, ठीक है, या वो परफ्यूम के नाम के साथ कंफर्टेबल ना हो, या हो सकता है उसकी पैकेजिंग उसको पसंद ना हो, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है मे बी कंज्यूमर इज़ आस्किंग फॉर मोर वैरायटी इन द प्रोडक्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। टू डील विद दीज थिंग्स यू हैव टू डू मार्केट रिसर्च, ठीक है। फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, ठीक है, सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से पहले सबसे पहले आपने जो करना है न्यू प्रोडक्ट बनाने से न्यू प्रोडक्ट बनाने से पहले जो आपने करना है यू हैव टू डू मार्केट रिसर्च, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट रिसर्च वगैरह हो नहीं सकती, ठीक है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट के मार्केट रिसर्च का काम क्या होता है, मार्केट रिसर्च का काम है टू आइडेंटिफाई कि कंज्यूमर्स की डिमांड क्या है, ठीक है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट, व्हाट आर द डिफरेंट थ्रेट्स अवेलेबल, ठीक है, फिर उसके मुताबिक टू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट विच विल सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर, ठीक है, दैट इज़ द बेसिक आइडिया।
ठीक है। सो रिसर्च कैन बी अंडरटेकन फॉर टू डिफरेंट पर्पसेस बेसिकली। हम कहते हैं दो तरह की मेन रिसर्च होती हैं। एक तो अप्लाइड रिसर्च होती है। अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो अप्लाइड इन नेचर होती है। उसका मकसद होता है टू सॉल्व अ करंट प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके अलावा यह बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च, उसका वो जो बेसिक रिसर्च जो होती है इट्स मोर थ्योरेटिकल इन नेचर। उसका मकसद किसी खास प्रॉब्लम के ऊपर नहीं होता, उसका फोकस किसी खास प्रॉब्लम पे नहीं है, उसका फोकस किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं होता। ठीक है। तो इट्स बेसिकली डन इन, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी थ्योरी को स्टडी करना चाह रहे हैं और उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, सो दैट इज़ एग्जांपल ऑफ बेसिक रिसर्च। ठीक है। बेसिक रिसर्च बहुत थ्योरेटिकल होती है नेचर। ठीक है। आप थ्योरीज को स्टडी करते हैं, यू ट्राई टू जनरेट न्यू थ्योरीज एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च की एग्जांपल है, लेट्स से अगर आप एप्पल आईपॉड बेच रहे हैं, एप्पल कंपनी आईपॉड बेच रहा है, they see कि sales increased by 200% from 2001 to 2008, but the sales decreased after 2008 by 6%। ठीक है। So what can be the reason for that? ठीक है। तो ये रीज़न फाइंड आउट करने के लिए you will have to do market research। ठीक है। ठीक है। So what do you think the Apple will do about this? They already know कि sales are decreasing. They will first find out the reason कि why sales are decreasing, then they will address that reason। अगर उनको लगता है कि sales इसलिए decrease करेंगे, iPod जो है इट्स नॉट मीटिंग द कस्टमर नीड या कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, तो दे विल हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा फीचर्स टू आईपॉड। ठीक है। या उनको लगता है अगर आईपॉड की मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो गई है, मेच्योरिटी स्टेज पे चली गई, तो देन obviously sales will decline and they'll slowly start recalling the product from the market। For example, Xerox's insulin isn't ready for increasingly competitive high-tech world. Xerox still relies on old-fashioned and slow-selling analog copies for more than half its revenue. ठीक है। Despite its double-digit growth in digital products and services, its sales rose just 4%. ठीक है। So in the case of Xerox के केस में क्या हो रहा है? ठीक है। इसकी सेल्स भी जो है वो राइज तो कर रही है, बट द इंक्रीज इन सेल्स इज़ वेरी स्लो। ठीक है। तो प्रॉब्लम Xerox हैज़ टू गो इनटू न्यू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराएगी तो उसकी फ़ोटो कॉपी ज़्यादा बिकेंगे। ठीक है। तो बेसिक रिसर्च में अक्सर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंगेज इन बेसिक रिसर्च, और ये बहुत थ्योरेटिकल नेचर होती है। ठीक है। और इसका मकसद ये होता है, इट्स द पर्पस इज़ टू understand and generate more knowledge about various aspects of business। ठीक है। For example, how to improve effectiveness of information systems, how to integrate technology into overall strategic objectives, how to increase productivity of employees। ठीक है। So the main difference between applied and basic research is applied research is specifically aimed at solving a particular problem। बेसिक रिसर्च का एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव होता है, इसका मेन मकसद होता है टू जनरेट अ बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है। एंड टू अंडरस्टैंड फिनोमिनन एंड प्रॉब्लम्स दैट अकर इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। दोनों टाइप्स ऑफ रिसर्च में वी फॉलो द सेम सिस्टमैटिक स्टेप्स ऑफ इंक्वायरी। ठीक है। स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं दोनों टाइप्स ऑफ रिसर्च में, दे आर द सेम। ठीक है। सो इन ऑर्गेनाइजेशंस, मैनेजर्स हु हैव अ नॉलेज ऑफ रिसर्च, दे हैव एन एडवांटेज ओवर दोज हु डू नॉट, because organizations to solve problems you often have to conduct research, particularly in marketing। So with the ever increasing complexity of modern organizations and the uncertainty of the environment they face, the management of organization systems has become one of constant troubleshooting in the workplace। ठीक है। So अगर managers knowledgeable about research, it will have managers to identify problems before they get out of control। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि यू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट मार्केट में बेचा, ठीक है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव होने की वजह से लोगों को किसी को नुकसान हो गया, फिजिकली नुकसान हो गया देखो। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक ख़ास तरह का केमिकल बेचते हैं इन द मार्केट। ठीक है। लेट्स वो केमिकल यूज़ होता है डर्ट को वॉश करने के लिए, गंदगी को वॉश करने के लिए। उस केमिकल यूज़ करके लेट से किसी की स्किन जल जाती है या इस तरह का भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो देन यू हैव
बेसिकली यू हैव टू एंटिसिपेट अगर इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है या नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट मार्केट में जाने से पहले यू हैव टू एंटिसिपेट कि प्रोडक्ट वैसे की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दूसरी, अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है मार्केट में, देन यू हैव टू मेक क्विक डिसीजंस टू आइडेंटिफाई हाउ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, ठीक है। तो इसके लिए नॉलेज और रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मैनेजर, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स ये मैनेजर्स खुद सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो ज़्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसके लिए दे हायर एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स, ठीक है। ठीक है, तो मैनेजर अगर कोई एक्सटर्नल कंसल्टेंट हायर करता है, फील नॉलेजेबल अबाउट रिसर्च, ही कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट, ठीक है। नॉलेज अबाउट रिसर्च प्रोसेस आल्सो हेल्प्स मैनेजर्स टू बिकम डिस्क्रिमिनेटिंग रेसिपिएंट्स ऑफ रिसर्च फंडिंग प्रेजेंटेड एंड टू डिटरमाइन वेदर और नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो अगर मैनेजर इज नॉलेजेबल अबाउट रिसर्च, तो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन ऑफ एनी रिसर्च रिपोर्ट और एनी रिसर्च प्रोडक्ट, ठीक है। चाहे वो एक्सटर्नल कंसल्टेंट ने बनाई हुई है उनकी इंटरनल या कंपनी ने इंटरनली प्रिपेयर की, ठीक है। मैनेजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड रिसर्च रिपोर्ट्स और अदर रिसर्च related material, so they will be better equipped to make intelligent, educated and calculated they will be better equipped to make intelligent and educated decisions, and at the same time they will be better equipped to take intelligent, educated and calculated risks. Some organizations have their own research department which might be called the management services department, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनके पास अपने रिसर्च के डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इवन हैव देयर ओन मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट्स, लेकिन सबके पास नहीं होते। आमतौर पर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दे हैव रिसर्च डिपार्टमेंट्स, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होती, ठीक है। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है उसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो यू हैव द चॉइस वेदर यू कैन हायर द इंटरनल रिसर्च डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी कि आप इंटरनल रिसर्चर्स को हायर कर सकते हैं, और यू कैन हायर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, ठीक है। तो दोनों के अपने फ़ायदे, इंटरनल रिसर्चर्स को हायर करने के कुछ अपने फ़ायदे होते हैं, एक्सटर्नल को हायर करने के अपने फ़ायदे, ठीक है। तो अगर आप इंटरनल रिसर्चर्स को हायर करते हैं, दैट हैव अ बेटर चांस ऑफ बीइंग रेडिली एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉयज़, ठीक है। चांसेस है आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ इंटरनल रिसर्चर्स के काम को ज़्यादा आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। उसके अलावा हो सकता है जो इंटरनल रिसर्चर्स हैं दे हैव डिटेल्ड नॉलेज अबाउट द कंपनी ऑलरेडी, ठीक है। सो द टीम वुड रिक्वायर मच लेस टाइम टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, द फिलॉसफी एंड क्लाइमेट एंड वर्क सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ठीक है, सो इंटरनल रिसर्चर्स कोई रिपोर्ट तैयार करेंगे, इफ दे मेक एनी रिकमेंडेशंस फॉर द कंपनी, दे विल after making a recommendation they will actually be available to implement them as well, and also it is cheaper to hire internal consultants. डिसएडवांटेज है अगर आप इंटरनल टीम को हायर करते हैं, दे माइट हैव लेस फ्रेश आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, and then there is scope for certain powerful groups in the organization to influence or misrepresent certain facts, ठीक है। there is a possibility that the internal researchers are not perceived as experts by the management, and hence the recommendations do not get the consideration and attention they deserve. ठीक है, हो सकता है इंटरनल रिसर्चर्स की रेपुटेशन इतनी अच्छी ना कंपनी में, दे माइट नॉट बी परसीव्ड एज एक्सपर्ट्स बाय द मैनेजमेंट। इसके अलावा जो आपके इंटरनल रिसर्चर्स उनकी जो सोच है इट कैन बी बायस्ड, ठीक है। So that can also affect the results of the research. एक्सटर्नल कंसल्टेंट अगर आप हायर करते हैं, एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स हैं ना वो ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं, दे आर बिग एक्सपर्ट्स, ठीक है, इन देयर फील्ड, दे हैव अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम हैविंग वर्कड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस that have had the same or similar types of problems. They might have more knowledge of current sophisticated problem solving models through the periodic training program. The cost of hiring an external research team is usually high. They need a considerable time to understand organization to be researched. They seldom get a warm welcome nor are accepted by employees, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंसल्टेंट को जब हायर करते हैं दे आर नॉर्मली नॉट वेरी वेलकम इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बहुत सारे लोग जो उनको पसंद नहीं करेंगे। उसके अलावा आप एक्सटर्नल कंसल्टेंट को हायर करेंगे तो दे विल नीड मोर टाइम टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन हाउ इट वर्क्स, ठीक है।
जिसकी वजह से रिसर्च का प्रोसेस स्लो हो सकता है। उसके अलावा द चार्ज एडिशनल फ़ी फॉर असिस्टेंट इन इम्प्लीमेंटेशन एवेल्यूएशन फेज, ठीक है। अगर आप उनसे कहेंगे कि उन्होंने जो रिसर्च कंडक्ट की है और उसके बाद जो रिकमेंडेशंस की है, उन रिकमेंडेशंस की को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करें, तो यू आस्क द एक्सटर्नल कंसल्टेंट फॉर दैट, दे विल चार्ज यू एडिशनल फीस, ठीक है। वैसे भी एक्सटर्नल कंसल्टेंट ज़्यादा पैसे चार्ज करें, ठीक है। फिर किसी भी बिजनेस रिसर्च में एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एथिक्स इन बिजनेस रिसर्च रेफर्स टू अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिहेवियर वाइल कंडक्टिंग रिसर्च, ठीक है। तो आपने जो भी रिसर्च करनी है एथिकली करनी है, एक सर्टन कोड ऑफ बिहेवियर होता है रिसर्च में, ठीक है, एंड यू हैव टू फॉलो दैट कोड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। सो एथिकल कंडक्ट अप्लाइज टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेंबर्स दैट स्पॉन्सर द रिसर्च एंड रिसर्चर्स हु अंडरस्टैंड, ठीक है। सो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और जो रिसर्चर्स आप हायर करें फॉर रिसर्च, दे बोथ हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो मकसद ये है कि आपने रिसर्च एक इस तरीके से करनी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, झूठ नहीं बोलना, कोई चीज़ छुपानी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एथिक्स में आती हैं, तो इसका आपने ख्याल रखना होता है, ठीक है। सो मेंबर्स जो रिसर्च के लिए पे करें और स्पॉन्सरिंग रिसर्च, दे शुड डू दैट इन गुड फेथ, they should pay attention to what the results indicate and pursue organization rather than self-interest. Ethical conduct should also be reflected in behavior of researchers who conduct the investigation, ठीक है। तो जो researcher हैं जो research कर रहे हैं, they should also behave ethically. Participants who provide the data and analysts who provide the results, they should also behave ethically. And then the entire research team that presents interpretation of results and suggest alternative solutions, ठीक है। तो आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज है, गो टू गूगल एंड याहू, टाइप द वर्ड बिजनेस रिसर्च, ठीक है, एंड यू डोंट हैव टू डू इट, जस्ट गो एंड टाइप बिजनेस रिसर्च, टाइप करें, देखें आपके क्या रिजल्ट्स आते हैं, देन टाइप मार्केटिंग रिसर्च, देखें आपके क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। सो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि गूगल एंड याहू पे, गूगल एंड याहू जो है रिसर्च को किस तरह डिफाइन करते हैं। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। तो इसके बाद हम मार्केटिंग रिसर्च को थोड़ा सा देख लेंगे, विल डू एन इंट्रोडक्शन टू मार्केट रिसर्च, ठीक है। उसके बाद विल जस्ट टॉक अबाउट सम प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एंड सो ऑन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।